بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قاضی محمد اعظم اور ہم عمر شاہ ہسٹورین چینل سے بول رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ چینل کسی علمی، ادبی، روحانی شخصیت، کسی تاریخی مقام اور فلمی ستارے اور کسی شاعر کے بارے میں ہوتا ہے، لہذا ہمارا آج کا پروگرام ایک انتہائی مشہور فلمی شاعر مخدوم محی الدین کے بارے میں ہے، جسے تحریر کیا ہے انیس امروہوی نے۔ ہندوستانی اردو ہندی فلموں میں ابتدائی دور سے ہی نغمہ نگاری کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ جس طرح فلم کی کہانی، منظرنامہ اور مکالمے لکھنے کے لیے اچھے نثر نگار، ادیبوں اور کہانی کاروں کی ضرورت ہمیشہ سے فلمی دنیا میں رہی ہے، اسی طرح باصلاحیت اور اچھے فلمی نغمہ نگاروں، گیت کاروں کی بھی فلمی دنیا کو ضرورت پڑتی رہی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ بہت سے کامیاب ادبی شاعر فلمی دنیا میں جا کر ناکام ہو گئے یا پھر جلدی ہی گھبرا کر گھر واپس آ گئے۔ دوسری طرف کئی ایسے نغمہ نگار بھی ہیں جن کی ادب میں کبھی کوئی شناخت قائم نہ ہو سکی، مگر وہ فلمی دنیا میں بہت کامیاب رہے اور ان کے نغموں سے فلموں کو کامیاب ہونے میں بھی مدد ملی۔ دراصل فلمی نغمہ نگاری ادبی شاعری سے تھوڑا مختلف قسم کا کام ہے۔ اگر ہم اسے تکنیکی کام کہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ جس طرح ایک کہانی لکھنا یا افسانہ تحریر کرنا بالکل ایک الگ بات ہے، اور اسی کو فلمی منظرنامہ بنا کر لکھنا بالکل مختلف قسم کی تکنیکی مہارت کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے اردو ادب کے کئی شاعر اسی لیے فلمی دنیا میں کامیاب نہ ہو سکے یا گھبرا کر جلدی واپس ہو گئے، کیونکہ وہاں کے طور طریقے اور چلن کچھ نرالے ہی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ موسیقار کی دھن سے بندھے ہوئے ہیں، اس نے جو میٹر بنا دیے ہیں اسی میں رہ کر اب آپ کو فلم کی سچویشن کے مطابق الفاظ اس دھن میں اٹھانے ہیں، یعنی آپ سچویشن کے بھی پابند ہوں گے۔ اب آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ گانا کہاں پر فلم بند ہوگا، یعنی گانے کے سین کی لوکیشن کیا ہے، اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے الفاظ کا استعمال کرنا ہے، اور پھر اس بات کا خیال بھی رکھنا ہے کہ فلم کے پردے پر کون کون سے کردار آپ کے لکھے نغمے کو گائیں گے۔ ایک خاص بات یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ آسان الفاظ کا استعمال کرنا ہے تاکہ فلم بینوں کا ہر طبقہ فوری طور پر آپ کے نغمہ کو سمجھ لے اور لطف اندوز ہو سکے، تبھی تو آپ کا نغمہ مقبول ہوگا۔ ایسے چند شاعروں میں جو فلمی دنیا میں زیادہ عرصے تک نہ ٹک سکے یا وہاں کے ماحول اور طور طریقوں کو نہ اپنا سکے، جوش ملی آبادی کا نام سر فہرست ہے۔ اسی طرح جگر مراد آبادی کے بڑے چہیتے شاگرد کمار بارہ بنکوی بھی تادیر فلمی دنیا میں نہیں ٹک پائے، جبکہ شکیل بدایونی، مجروح سلطان پوری اور ساحر لدھیانوی نے کامیابی اور شہرت سب کچھ حاصل کی ہے۔ اسی طرح جلد واپس ہونے والوں میں ایک بڑا خوبصورت سا نام مخدوم محی الدین کا بھی رہا ہے۔ مخدوم محی الدین کا پورا نام ابو سعید محمد مخدوم محی الدین ازری تھا۔ وہ 4 فروری 1908 بروز پیر کو اندرول ضلع میدک میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد ملازم تھے۔ یوں ان کا آبائی وطن منمول تھا اور خاندان کے بزرگ مخدوم کو بچپن میں بابا کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کے بچپن میں ہی جب وہ محض 5.25 برس کے تھے، ان کے والد محمد غوث محی الدین کا انتقال 30 برس کی عمر میں ہو گیا۔ بعد میں مخدوم کی پرورش ان کے چچا محمد بشیر الدین نے کی، جو اندرول کی تحصیل میں بحیثیت اہلکار ملازم تھے۔ مخدوم کے بچپن میں ہی ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی، مگر اس بات کو مخدوم سے پوشیدہ رکھا گیا۔ کافی عرصہ کے بعد مخدوم کو کسی طرح پتہ چلا کہ ان کی ماں زندہ ہیں اور ان کی ایک بہن بھی ہے۔ بعد میں ان کی والدہ ان ہی کے ساتھ رہنے لگی تھیں اور مخدوم کے گھر میں ہی ان کا انتقال بھی ہوا۔ مخدوم محی الدین کی شادی 22 اگست 1933 کو ان کے ایک دوسرے چچا سمیع الدین کی دختر رابعہ بیگم سے ہوئی۔ مخدوم نے اپنی تمام تر گھریلو مشکلات اور خود کی شرارتوں کے باوجود 1934 میں جامعہ عثمانیہ حیدرآباد سے BA کا امتحان درجہ دوم میں پاس کیا اور وہیں سے 1936 میں MA کی ڈگری حاصل کی۔ جامعہ عثمانیہ میں ڈاکٹر عبدالحق جیسی شخصیت سے ان کا واسطہ رہا اور سکندر علی وجد اور جلال الدین اشق جیسے شعراء مخدوم
मखदूम के हम असर थे। मखदूम खुद भी जामिया उस्मानिया में बहसियत शायर खासे मकबूल थे। 1933 में मखदूम ने अपनी तालब इल्मी के जमाने में ही पहली नज़म पहला दो शाला कही थी, जो कवाली की तर्ज पर कॉलेज के पोस्टर में बड़ी मकबूल थी और इनके साथी तलबा अक्सर दोहराया करते थे। मखदूम की बेहद मकबूल गजल फिर छिड़ी रात बाद फूलों की का भी एक दिलचस्प वाकया है। 1960 की बात है। शकीला बानो भोपाली किसी प्रोग्राम के सिलसिला में हैदराबाद आई हुई थी और वो मखदूम इनके दोस्त शाहिद सदीकी से काफी बेतकल्लफ थी। तीनों दोस्तों में ये बात तय हुई कि अब जो भी बात हम तीनों में होगी वो मंजूम होगी। रात को आने के बाद शायरी का दौर चला और शकीला बानो को खूब हार पहनाए गए जो उनके सामने रखे हुए थे और वो बेख्याली में पत्ती पत्ती उनको बखेर रही थी। इसकी वजह से इनके सामने पत्तियों की चादर सी बिछ गई थी। शाहिद सदीकी ने आस्था से कहा, क्या बिछा दी बसात फूलों की। शकीला ने जवाब दिया, बेमरब्बत है दात फूलों की। मखदूम ने दोनों को खामोश कराने की गरज से कहा, लोग सुनते हैं बात फूलों की। मुशायरा खत्म हुआ। अगले दिन फूलों वाली जमीन पर मखदूम की वो मशहूर जमाना गजल तैयार थी जो बाद में फिल्म बाजार में फिल्म साज व हदायतकार सागर सरहदी ने इस्तेमाल। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। मखदूम ने तालिब इल्मी के जमाना से ही तलाशे रोजगार शुरू कर दी थी। सदा में अपने दोस्त नूरुल खुदा के साथ मिलकर पेंटिंग्स फरोख्त की, मगर ये कारोबार अच्छा न चला तो फिल्मी अदाकार और अदाकारों की तस्वीरें फरोख्त करने लगे। अखबारों के दफ्तरों में काम किया, ट्यूशन भी पढ़ाए। 1937 में MA करने के बाद दफ्तर दीवानी में क्लर्की भी की। 1939 में मखदूम सिटी कॉलेज के शोबा उर्दू में बहसियत उस्ताद मुकर्रर हुए और 1941 में ये मुलाजमत भी छोड़ दी। 1940 में ही मखदूम कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी मुंतखब हुए और इनके सियासी मसरूफियात बढ़ने लगी। 1943 में मखदूम अंग्रेजों के खिलाफ तकरीर करते हुए गिरफ्तार हुए और 3 माह सादा सजा के लिए जेल गए। बाद में मखदूम को असेंबली का रुकन भी चुना गया। मखदूम मईउद्दीन ने फिल्मी दुनिया से वाबस्तगी की कोई कोशिश नहीं की थी। इनकी नज़में और गज़लें काफी मकबूल हो चुकी थी। फिल्म साजों व हदायतकारों को अपनी तरफ मतवज्जो कर रही थी। फिल्म साज व हदायतकार बमल राय जो अपने हम असरों से मुख्तलिफ ज़हन फिक्र के फिल्म साज थे, उन्होंने मखदूम की एक नज़म सिपाही को अपनी फिल्म उसने कहा था में मौसर मौसीकी के साथ पेश किया था। मौसीकार सलील चौधरी ने मखदूम के मिसरों की सबक हरामी के मुताबिक बहुत पुरअसर मौसीकी तरतीब दी थी। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। 1958 में मशहूर फिल्म साज हदायतकार जरदोत अपनी फिल्म कागज के फूल के लिए मखदूम से गीत लिखवाने के ख्वाहिशमंद थे, मगर इनकी ये भी ख्वाहिश थी कि मखदूम बम्बई में रहकर इस फिल्म के गीत लिखें और मखदूम अपनी सियासी सरगर्मियों की वजह से हैदराबाद छोड़ने को तैयार नहीं थे। लिहाजा बाद में मखदूम की ही सिफारिश पर जरदोत ने फिल्म कागज के फूल की नगमा निगारी की जिम्मेदारी ऐसी आदमी के स्पुर्द की। मखदूम की एक और नज़म चारा घर ने फिल्मी दुनिया में बड़ी धूम मचा दी। इस फिल्म का मुखड़ा एक चमेली के मंडवे तले बेहद मकबूल हुआ। इस गाने की धुन हैदराबाद के ही एक म्यूजिक डायरेक्टर इकबाल कुरैशी ने तैयार की थी। इस नज़म को सबसे पहले फाइन आर्ट अकेडमी के गुलकारों ने पेश किया था। इकबाल कुरैशी खुद भी फाइन आर्ट अकेडमी के मेंबर रह चुके थे, लिहाजा उन्होंने इस नज़म को अवाम के सामने कोर्स की शक्ल में पेश किया। बाद में देवानंद, राज खोसला, सुनील दत्त और ख्वाजा अहमद अब्बास ने भी इस नज़म को पेश करना चाहा, मगर चंद्रशेखर ने अपनी फिल्म चाचा चा में इस नज़म को मुकम्मल तौर पर पेश किया। हालांकि ये फिल्म नाकाम हो गई, मगर मखदूम का लिखा नगमा एक चमेली के मंडवे तले पूरे हिंदुस्तान में गूंजने लगा। एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे तले, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, मैं कदे से जरा
मखदूम ने 1968 में फिल्म बरसात साइन की। इस फिल्म की मौसीकी मकबूल मौसीकार मदन मोहन तरतीब दे रहे थे। मखदूम का इरादा था कि वो महीने में 2-3 बार हवाई जहाज से बम्बई जाएंगे और काम मुकम्मल कर देंगे। अभी वो इस फिल्म के 2 गीत ही लिख पाए थे कि इनका इंतकाल हो गया और कुछ अरसा बाद ही मदन मोहन भी चल बसे। इस तरह ये फिल्म अधूरी ही रह गई और कोई एक गीत भी रिकॉर्ड न हो सका। मखदूम का मजाज फिल्मी दुनिया के तौर तरीकों से मुवाफिक बिल्कुल न था। नज़म सिपाही और चारागर की मौसीकी तैयार करने में मौसीकार खुद शायर का पाबंद था, मगर फिल्मी दुनिया के रिवाज के मुताबिक शायर को ही मौसीकार का पाबंद रहना पड़ता है और फिल्मी दुनिया की रवायत के मुताबिक पहले मौसीकार धुन तैयार कर लेता है, जिस पर बाद में शायर को अल्फाज बैठाने होते हैं। मखदूम की पूरी शायरी में गीतों का अमल दखल नजर नहीं आता। इसके बावजूद इनकी कई नज़में ऐसी हैं जिनमें गीतों की नगमगी उसी अंदाज की है। मिसाल के तौर पर नज़म आजादी वतन और नज़म मुसाफिर या फिर मुस्तकबिल जंग आजादी, सितारे और मास्को जैसी नज़में गीतों के अंदाज की ही हैं। यही वजह है कि फिल्म बरसात के दोनों गीत लिखने में मखदूम को दुश्वारी महसूस नहीं हुई और वो फिल्म के लिए गीत लिखते वक्त भी शेर और शेरियत के तकाज़ों का ध्यान रखते थे। फिल्म चाचा और गुमन के बाद फिल्म बाजार में मौसीकार खयाम ने मखदूम की गजल फिर छेड़ी रात फूलों की को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया। इस गजल को लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाजों में रिकॉर्ड कराया गया। ये फिल्म तो कामयाब हुई है, मगर इससे ज्यादा मखदूम की गजल फिल्मी शायकीन के दिलों पर छा गई। बाद में लता मंगेशकर के एक एल्बम में भी इस गजल को शामिल किया गया। इसी तरह मखदूम की एक नज़म इंतजार को भी फिल्म में इस्तेमाल किया गया। रात भर दीदाए नमनाक में लहराते रहे। वो फिल्म साज व हदायतकार महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट ने अपनी फिल्म तमन्ना में बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। इस नज़म की फिल्म बंदी भी बहुत खूबसूरत अंदाज में हुई है और ये फिल्म अवाम में भी काफी मकबूल। मखदूम का जो भी कलाम फिल्मों में इस्तेमाल हुआ वो बेहद मकबूल हुआ और आज भी फिल्म बीनों के कानों में गूंजता है। हालांकि ऐसे नगमों की तादाद बेहद कम है। मखदूम का एक शेर जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और हजारों जगह कोट किया गया वो था, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। मखदूम का पहला शेरी मजमुआ 1944 में सुर्ख सवेरा के उन्वान से शाया हुआ। गुल तक के उन्वान से दूसरा मजमुआ 1961 में मंतरे आम पर आया। 1966 में बसात रक्स के उन्वान से जश्न ने मखदूम के मौका पर मखदूम कमेटी ने तीसरा मजमुआ शाया कराया। हैदराबाद से शाया होने वाले रसाले सबा ने भी मखदूम की शख्सियत और इनके फन पर एक खुसूसी शुमारा सलेमान अरैब की इदारत में शाया किया। 25 अगस्त को सुबह को दिल्ली के पुरवन अस्पताल में मखदूम ने आखिरी सांस ली और अपनी तर्ज का ये बेमिसाल शायर अपने खालिक हकीकी से जा मिला। वो साबिक सदर जमहूरिया हिंद जनाब बीबी गिरी के सदर मुंतखब होने की खुशी में मुनक्कद एक मुशायरे में शरीक होने के लिए दिल्ली आए थे। बाद में 26 अगस्त को हैदराबाद की गश्त का शाह खामोश में मखदूम को सुपुर्द खाक किया गया। इनके चंद फिल्मी नगमे आज भी हिंदुस्तान की सदाओं में गूंजते हैं। मोम की तरह जलते रहे हम शहीदों के तन, मोम की तरह जलते रहे हम शहीदों के तन, रात भर जगमगाती रही, रात भर झिलमिलाती रही शमे सुबह वतन, रात भर झिलमिलाती रही शमे सुबह वतन, रात भर जगमगाता रहा चांद तारों का बन, रात भर